ये जो सरमन है हम लोग और देखने वाले हैं कि आई डोंट वांट एनीबॉडी टू लिव इन द पॉवर्टी लाइफ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी गरीबी जीवन जिए, क्योंकि गरीबी जीवन से परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर चुके हैं। और गरीबी का जो आत्मा है, जो शैतान है, जो गरीबी का जो शराब है, द पॉवर्टी इज अ कर्स, वो शराब से आपको आज़ाद कर चुके हैं, लेकिन वो शराब अभी तक गया नहीं। क्यों? क्योंकि आप सत्य को नहीं जान पा रहे। Right? So let us know what is the truth about the Word of God. हम लोग जब देखेंगे, for the love of money is a root of all kind of evil. Right? तो आदमी लोग थोड़ा सा पढ़ के meditate नहीं करते. Just they read simply, but they don't meditate inside. What does it mean by? आज ये वचन लेके बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग धनी नहीं होना है क्योंकि पैसा पूरा है। This is evil. But Bible doesn't say money is evil, but love of money, greedy of money is evil. God says silver is mine, gold is mine. Right? है कि नहीं? परमेश्वर कहता है कि सोना चांदी मेरा है, तो आप कौन होता है कि पैसा खराब है? Only just love or lover of money is evil. आज कितने लोग पैसा खोने से भूल जाते हैं दूसरे को। How many of you like if there is money you forget anybody? आप किसी को पहचानता नहीं हो। like पैसा के लिए कोई लोग पहचानता नहीं है। पैसा के मामले में कोई लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। That should not be. Okay? We need to live in love. Money is not bigger than anything else. But the thing is, we need money. Right? We need money to live on this earth. तो अभी यहाँ पे आज हम लोग को ये जानना है। सबसे पहले मैं उन्नति के बारे में सिखाने से पहले आप लोग को जानना देना चाहता हूँ कि you should not become greedy of money, you should not become lover of money. Amen? आप लोग बोलेंगे, you want to confess with me? I will not become a lover of money. I will not become a lover of money. Amen? We should not become a lover of money. Okay? We should not be greedy. और अभी यहाँ पे हम लोग जब वचन देखते हैं, Do you know the heart of God regarding prosperity? Do you know the heart of God? क्या परमेश्वर के हृदय को आप जानते हैं? हम लोग परमेश्वर के हृदय को नहीं जानते हैं। कैसे बोलते हैं कि prosperity का मैसेज है ये? This is false teaching, false doctrine. Prosperity means people think that this is the spiritual things. आत्मा का चीजें, आत्मा का आशीष, आत्मा का treasure. Yes, Jesus talk about the treasure in heaven, but Jesus talk about even materialistic blessings. Amen. We need to understand this. हम लोग को ये समझना है. We should differentiate how the Jesus teaches. जो परमेश्वर सिखाते हैं, हम लोग को बोलते हैं, वायदा करते हैं, उसको समझना है। जब यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम स्वर्ग का राज्य में तुम्हारा खजाना, तुम्हारा अकाउंट में पैसा रखो, राइट? ट्रेजर इन हेवन. That doesn't mean that God doesn't want you to be rich on earth. 30 पे आप रहेंगे तो आप धनी बने नहीं। परमेश्वर का जो हृदय है उसको जानना है हमें अभी। God wants you to treasure your property, the money, your riches in heaven. At the same time, God wants you to be a blessing on this earth. अगर इस 30 में आप धनी नहीं है तो आप क्या treasure करोगे heaven में? Are you getting the point? If you have you are broke, you don't have any money in your account, how will you help the poor? गरीब लोगों को कैसे आप help करोगे? जो जरूरत है उसको कैसे दोगे? Right? So when you treasure your treasure in heaven, that can be happen only when you become rich on earth. तो इसीलिए परमेश्वर वायदा करते हैं कि you seek the first the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य को सबसे पहले खोजो, उसका धार्मिकता को खोजो, seek His righteousness, then everything will be added as well. Not the Gentiles seeks about, they think about, they worry about what they will eat, what they will drink, what they will wear. But your heavenly Father knows you also need that, right? परमेश्वर कहता है ना, तुम्हारा परम पिता भी जानते कि तुमको वो जरूरत है, लेकिन तू पहले उसका राज्य को खोजना, पहले उसका धार्मिकता को खोजना, तभी तुमको वो सारी चीजें दिया जाएंगे, right?
So we need to really understand the heart of God today. See what God says. Let them shout out for joy and be glad, who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified. Let the Lord be magnified. Who has pleasure in the prosperity of his servant? Who has pleasure? God is not against your prosperity. परमेश्वर आपका उन्नति पे विरोध नहीं है. अभी हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, सर्वेंट, ही सर्वेंट, ये पुराना नियम में लिखा हुआ है. यीशु मसीह जब आया तब उसने कहा कि मैं तुमको नौकर नहीं बुलाऊंगा. I will not call you servant, but I will call you my friend. फिर यीशु मसीह मरने के बाद वो आज्ञा देते हैं कि तू जाओ और चेला बनाओ. यहाँ पर नहीं लिखता है कि तुम जाओ विश्वासी बनाओ. तो हर विश्वासी उसका चेला है. हर चेला सर्वेंट ऑफ गॉड है. आमीन. हम लोग आप सेवकाई कर रहे हैं ना कर रहे हैं, आप पास्टर है या आप बिलीवर, उससे फर्क नहीं पड़ता. Everybody, whoever in the kingdom of God, we all are the servant of God. Amen. We do the different ministry. अभी आप विश्वासी बन के बैठे हैं, लेकिन कोई लोग जब किचन में जाके प्लेट धोएंगे, वो भी मिनिस्ट्री है. आप लोग समझ पा रहे हो? So now we need to understand that God has a pleasure in the prosperity of His children. समझ पा रहे हो? उसका संतान, उसका बच्चे लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, उसका दास के लिए जो उन्नति होता है, उसके लिए वो प्रसन्न है, उसके लिए वो संतुष्टि है, उसके लिए वो उसका क्या है, मन इच्छा है. He has a pleasure for you to be prosperous in your life. इसलिए चरण chapter 29 verse 11 में कहता है कि I have a plan for you not to harm you but to prosper you and give you hope and future. Right? है कि नहीं? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे पास खर पना है, हानि लाने के लिए नहीं है, लेकिन उन्नति, आशा और भविष्य देने के लिए. Right? So now we need to understand today that this is the heart of God. परमेश्वर का हृदय ये है. He has a pleasure on you that you should be prosperous. लेकिन कोई लोग ऐसा है कि नहीं, I don't want to prosper. मैं नहीं चाहता उन्नति हो जाए, मैं नहीं चाहता धनी हो जाए. नहीं, हम परमेश्वर का संतान है ना, तो ये गरीब जीवन जो, हाँ तुम गरीब जीवन जो, बाद में तुम जाके फिर जाके मांगना, हाँ थोड़ा पैसा दे, तो मेरे पास पैसा नहीं है. ऐसा लोग ही जाके किसी के पास जाके मांगे, धोखा देके जाते हैं. हाँ, लेकिन देखने में तो पूरा नम्र है, एकदम नम्र है. नहीं उन्नति नहीं, इतना धनी है, इतना पवित्र है. राइट? लेकिन परमेश्वर का महिमा किस में होता है? परमेश्वर का महिमा इसमें होगा क्या कि हम घमंड है कि हम विश्वासी भिखारी नहीं है. कोई भी चर्च का सामने भिखारी कोई दिखाई नहीं देगा जो विश्वासी है. दुनिया में कोई भिखारी नहीं दिखाई देगा जो विश्वासी है. इसलिए मैं घमंड हूँ. इसलिए मैं घमंड हूँ, वो परमेश्वर का महिमा है. तो आज हर विश्वासी अगर धनी बन जाए तो वो परमेश्वर का महिमा है कि नहीं? Is it not the God's glory? जब एक विश्वासी जब मुश्किल में पड़ेंगे, गरीबी जीवन जिएंगे, कमी खटी रहेंगे, तो परमेश्वर का महिमा वहाँ पे नहीं. There is a curse. So if you want to praise Him, if you want to glorify Him by living, you have to believe what God has a plan for you. Amen. परमेश्वर का योजना क्या है आपके लिए, उस पर विश्वास करना है. आज हम लोग परमेश्वर का आशीष को नहीं देख पा रहे क्योंकि you are not able to believe what word says. परमेश्वर का आशीष नहीं देख पा रहे क्योंकि आप जो वचन देखा उस पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो. वचन तो वचन है. अरे वचन तो वचन है, लेकिन क्या आप वचन का सामर्थ्य को समझते हो? Yesterday on fasting prayer we have learned about the word, right? How powerful it is. कितना शक्तिशाली है ये वचन. तो वचन को छात्र नहीं समझना है. बहुत सारे विश्वासी वचन को साइड रखते हो, लेकिन आपका दिमाग चलते रहता है. You cannot experience the miracles in your life until unless you respect the word of God.
Until unless you think that, आप सोचते हैं कि ये वचन लिखा है तो वैसे होगा, मालूम है? Right? People find difficult to think that by your prayer the dead will raise. तुम्हारा प्रार्थना के द्वारा मौत मृत्यु जी उठेंगे, आप विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन वचन कहता है तुम जाओ मुर्दों को चिल्लाओ। राइट? मेरा कहने का ये नहीं है कि जब कोई भी रास्ता में मरा हुआ आदमी मिले जाके मुर्दों को चिल्लाना स्टार्ट कर दे, ये नहीं बोल रहे। मैंने देखा कोई पास्टर लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स गॉड्स विल। Why I'm saying? Because the pastor is not the healer. Healer is God. If God sends me, I'll go to hospital. But if God doesn't send me, I will not simply go and heal the sick. God says, go and heal the sick. उसका मतलब नहीं कि हम लोग कहीं पर भी जाएगा हम चंगाई करना शुरू कर देंगे, मुर्दों को चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। कोई लोग ऐसे ही किया, जब मारा होगा उन लोग परमिशन ने कहा मुर्दों को चिल्लाना है, उठाना है, उठा रहा है, जिंदा हुआ ही नहीं। बिकॉज देयर शुड बी अ प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा होगा ना, परमेश्वर का कल्पना जहाँ पे है वो मुर्दों भी जी उठेगा। बट यू शुड नो, यू शुड हियर द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज़ को आपको सुनना पड़ेगा कि कैसे मुर्दों जी उठता है। मालूम है, मुर्दों भी जी उठेंगे। Because I have no doubt, I have 100% confidence and belief, and even I have experienced that. मैंने खुद experience किया है। Just phone call, फोन में प्रार्थना करके मुर्दों जी उठाए। When there is a plan of God possible. जब कोविड का समय था, मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने देखा भी है कोई पास्टर कोविड से मर गया। कोविड का समय आ गया, वो पास्टर क्या किया, बीमारों के लिए जाके प्रार्थना करने लग गया। कोविड, हाँ हमको कोविड नहीं लगेंगे। अरे परमेश्वर की इच्छा तो होना पड़ेगा ना, आप ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे तो गॉड, इफ यू हैव अ प्लान, इफ यू हैव अ डिजायर और प्लान टू गो एंड हील द कोविड पेशेंट, देन आई विल गो। आई हैव नो फियर। Exactly, the door opened. The sister called me up and said, brother, can you come to my home? Pray for my husband. उसको कोविड हुआ, कोविड उसका सारे फैमिली हुए थे, प्रार्थना किया, सब ठीक हुआ, लेकिन उसका पति ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब गया, प्रार्थना भी किया, चाय भी पिया, पानी भी पिया, कोविड का रूल के हिसाब से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, हम लोग उसका बेड का सामने खड़े हो गया, अंकल प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके आया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उल्टा वो पेशेंट जो है वो ठीक हो गया। So when God has a plan, there is a God's protection. When God has a plan, the miracles that pursue you. Amen. अब हम लोग ये जानना है, अपना दिमाग से नहीं चलना है। तो आज परमेश्वर के हृदय क्या है? God wants you to prosper. हम लोग सब बोलेंगे, God wants me to prosper. God wants me to prosper. That is the heart of God. Amen. परमेश्वर के हृदय को जानना है। आप खुद को गरीब मत समझो। अगर आप खुद को गरीब का मेंटालिटी रखेंगे, वो गरीब का शराब आपसे निकल के नहीं जाएगा। मालूम है? आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह में आने से पहले the poverty, the curse of the poverty is already preoccupied in your life. So as soon as God deliver you, still it is being preoccupied. It is illegal tenants. जैसे कि आपका कुछ संपत्ति दखल करके रखा है पहले से ही, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है ये तुम्हारा है, ले लो। ये धनी, the riches is yours. Bible says that यीशु मसीह धनी थे लेकिन वो गरीब बना ताकि उसका गरीबी से हम लोग धनी बने। Jesus Christ was rich, but he became poor for your sake, so that through your poverty, through his poverty, you must become rich. Colossians chapter 3 verse 13 में कहता है कि यीशु मसीह श्रापित बने। You are redeemed in Christ, for it is written, whoever hang on the tree is a curse. यीशु मसीह श्रापित बना, सूली पर चढ़ा के नहीं चढ़ा, सूली पर जब चढ़ा वो श्रापित बना है। Why he become a curse for you? So that you should be a blessing. Amen. You should be a blessing. Why he become a poor for you? So that you must be rich.
You must be rich in the materialistic, even in the spirituality. आमेन। आत्मा का दुनिया में भी और शरीर का दुनिया में भी आप धनी बने। हमने एक पास्टर को देखा है, he believe in the prosperity and he teaches a very good prosperity sermon. So someone came and give him the gift a car, 3 crores car, 3 crore का कार दिया उसको किसी ने। आप सोच के देखिए, तो जो दूर से है जो लोग देखता है पास्टर 10 करोड़ का गाड़ी चलाता है। अरे परमिशन ने दिया है तो आप कौन है जो बोलता है, राइट? Because he believes, so he has. He believes, so he has no lack of financial blessings. पैसा का आशीष का कोई कमी नहीं है उसका। He is a very rich servant of God, but he is not the lover of money. Amen. He is not the lover of money, but God make him to be rich. ठीक है? So I will also come to the point later on that what is the purpose of becoming rich. आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। What is the key to prosper in life? Only two keys are there. जैसे हमारे चर्च में 2 चाबी हैं, वैसे ही उन्नति का चाबी भी 2 है। 2 चाबी हैं। उन्नति का चाबी कितना है? 2 चाबी है। What is the first one? By giving. Second one, by forgiving. आप एक क्षमा का जीवन जी रहे कि नहीं? Are you living a forgiving life? Or you have a bitterness that, oh, he has hurt me, he spoke against me, he walked against me, he cheated me? हाँ? कितने लोग करवाहट का जीवन जी रहे हैं, नफरत का जीवन जी रहे हैं, कितने लोग अक्षमा का जीवन जी रहे हैं? How many of you are living an unforgiven life? If you are living unforgiven life, this is also a cause of your poverty. Amen. And if you are living unfaithful tithing and giving offering, then this is also cause of your poverty. अगर आपका जीवन में जो कुछ भी इनकम सोर्स आ रहा है, लेकिन आप टाइट फेथफुली दे नहीं रहे हो, ऑफरिंग फेथफुली नहीं दे रहे हैं, तो आपका करीबी जीवन का श्राप वो भी है, वो भी एक चल रहा है। ठीक है? आई एम नॉट स्पीकिंग रॉन्ग, ओके? बाइबल कहता है, बाइबल कहता है। हम लोग जब बाइबल में देखेंगे उन्नति के लिए और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए, दूसरा कुछ भी नहीं। There is no anything that talks about the financial blessings except giving and except forgiving. Forgiving and giving is the only 2 key to make you prosper in life. ठीक है? तो बाइबल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि आप ईमानदार से परमेश्वर को टाइट ऑफरिंग दसम भाग नहीं दे के परमेश्वर आपको धनी नहीं बनाएंगे। God cannot make you rich if you are not faithful in tithing and offering. आप कितना भी कोशिश कर लो, आपका इतना इनकम आएंगे लेकिन वो पानी में निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर का सुरक्षक वहाँ पे नहीं है। लेकिन जब आप टाइट देने लगेगा, ऑफरिंग देने लगेगा, गरीब लोगों को सहायता करने लगेंगे, तब आपका जो इनकम आपका खटे में आते हैं, द इनकम दैट कम्स टू योर अकाउंट, दैट विल बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड। आमीन। तो आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वी कैन लर्न गिविंग टू द मिनिस्ट्री। गिविंग टू द मिनिस्ट्री हम लोग देख सकते हैं। आप लोग पढ़िए उसको, वचन को। Paul is talking about here, for even in Thessalonica you send aid once and again for my necessities, right? Paul बोल रहे हैं मेरा जो जरूरत के लिए तुम बार बार, एक बार नहीं लेकिन बार बार तुम लोग भेजते हो। Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your heavenly account. To your account means what? Heaven's account. एक आंटी ने मुझे बुलाया, बोला जी आप आइए। हम गया, बोला मैं बहुत दिन से हम परमेश्वर को दे नहीं पा रहे हैं, तो मेरे को परमेश्वर ने बात किया कि मेरा सुकू का अकाउंट में मेरा पैसा नहीं है।
ये लो प्रार्थना कर दो बोला। हम थे वो नागालैंड से है, तो मैं प्रार्थना करके दिया। लेकिन उस टाइम में ये रिवलेशन में मेरे को मिला नहीं था, फिर भी हम प्रार्थना करके दिया। और बोला मेरा हेवंस अकाउंट में एम्प्टी हो गया, मेरे को परमेश्वर ने बताया है। God told me that in my accounts in heaven is empty. अगर आप बैंक में जाएंगे, एटीएम में जाएंगे, आपका एटीएम में जीरो बैलेंस, आप कैसे विथड्रॉ करोगे? राइट, दैट इज द थिंग। सी, कभी कभी हम लोग निराशा नहीं होना है। When we talk about prosperity, sometimes people are showing seed, दे रहा है, आपका हेवन में अकाउंट में ट्रेजर भर रहा है, सेविंग हो रहा है। You should be rich even in the heaven sometime. When you are not seeing the result that coming, no problem, you continue showing it. आज बहुत सारे लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट डालते हैं, सेविंग अकाउंट में कुछ स्कीम में उन लोग सेव करते हैं, इंश्योरेंस में डालते हैं, उसमें डालते हैं। जब तक वक्त नहीं आएंगे, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का बनाएंगे, वक्त जब तक नहीं आएगा, आदमी लोग निराशा नहीं होता ना, देते रहता है। क्योंकि बाद में मैं निकालेगा इतना, उन लोग का दिमाग है कि मैं बाद में निकालूंगा इतना, तो डाल ही रहे। तो जब हम लोग इस दुनिया में रहेंगे, समटाइम व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग योर ट्रेजर इन हेवन, डोंट बी अपसेट। कभी भी परमेश्वर क्या पता आपको डिपॉजिट करने दे रहे, राइट, इमीडिएटली वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन डिपॉजिट करने दे रहे हैं। आप ईमानदार हो, डोंट बी अपसेट। अगर परमेश्वर का वचन जो कुछ भी वायदा करते हैं तो उसमें कुछ डाउट मत हो, आएगा ही। मैंने एक सिस्टर को देखा था, मैं रोज बोलता हूँ उसके बारे में। उसके पास नौकरी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन गुवाहाटी में 15,000 का घर में रहते थे। उसका बेटा को पढ़ाई कराता था। और कभी कभी जब उसका पास पैसा नहीं है, लेकिन जब पास्टर का कुछ स्पेशल दिन आएगा, बर्थडे आएगा, कुछ एनिवर्सरी आएंगे, मैंने देखा उसका इयरिंग को भी बंधन में रखे पैसा लेके आता है, फिर उसको कीप देता है। मैं सोचा अरे ये तो मूर्ख है। Why she does that? If she doesn't have, then why she is doing all those things? मतलब वो दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, और परमेश्वर उसको चलाता भी है। हर मतलब उसका बेटा पढ़ाई करते करते डिग्री भी खत्म हुआ, फिर कैसे कैसे खत्म हुआ, पैसा कैसे आता है पता नहीं। उसका पति भी नहीं, और अच्छा विश्वासी है, प्रार्थना करने वाला औरत। तो मैं जब भी देखता हूँ उसके पास, हाँ ब्रदर प्रार्थना करो, मैं रेंट देने के लिए नहीं हो रहा है, 2 महीना दिया ही नहीं है, क्योंकि नौकरी नहीं ना। और परमेश्वर भी उसको टेस्ट करता है, उसका विश्वास कैसे है। फिर 3 महीना के बाद पैसा आ जाता है, हाँ मेरा पैसा कहीं से आया है। फिर वो रेंट क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद रेंट देने से पहले वो ऑफरिंग निकालेंगे, टाइट निकालेंगे, 10वां भाग निकालेंगे, परमेश्वर को देगा पहले, फिर उसके बाद रेंट देगा। तो ऐसे करते 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 मैंने देखा 3-4 साल चला गया करते करते, लेकिन परमेश्वर का आशीष आते हुए देखा नहीं मैंने, मालूम। लेकिन ऐसा समय आया, सोच के आप लोग सुन के हैरान हो जाए, उसका चितना हेवन में जो जमा हो रहा था, every treasure that she was depositing in the heavens account, what's happened, you know? Finally, her son wants to go abroad for higher study for 1 year, 1 साल के लिए higher study जाना है। तो क्या हो गया, पैसा नहीं है। जब इंटरव्यू लिया तो उसको 80 लाख का जरूरत है, 80 लाख, 80 lakhs। तो उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद कंडीशन एक्सप्लेन किया, तो फॉरेन जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना था, वहाँ से उन लोग करान किया 20 lakhs एज अ स्कॉलरशिप। अभी 60 lakhs कौन देगा? पैसा 1 रुपया नहीं उनके पास, 60 लाख कौन देंगे? लेकिन सडनली स्पॉन्सर निकला 60 lakhs का। आप सोच के देखिए। नाउ हर सन इज वर्किंग इन बेंगलोर, already studies finish। 60 lakhs का स्पॉन्सर कहाँ से आएंगे? आप सोच के देखिए, nearly crore है। So that is the fruits that God does such miracles in life, ना? इसलिए हम लोग जब परमेश्वर को देते हैं ना, हम लोग दुख नहीं होता, हम लोग दे ही रहे, लेकिन फल तो दिखा नहीं रहा। अरे फल दिखाई नहीं रहा, कोई बात नहीं, जिस दिन फल आएगा आप हैरान हो जाएगा। आमेन। और समटाइम व्हेन यू आर गिविंग, आई डोंट मीन दैट द सेम थिंग विल हैपन टू यू। बिलीव द ब्लेसिंग विल हैपन इमीडिएटली टू यू। आमेन। एक्सपीरियंस करना है।
God doesn't do the same thing to you. When you start faithfully giving to you, you will see your money is saving more. Though you may be spending in every need that you have, but still I wish that your money should not finish. Amen. लास्ट संडे भी मैंने बोला था, जब आप अच्छे जगह में इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, अगर वो सफिशिएंट नहीं तो परमेश्वर से मांगो. Say to God that it is not sufficient, give me more. हम जब मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया 2012 में, मेरा जब MT खत्म हुआ, when I joined in the ministry, तो मैंने परमेश्वर से बात किया था कि मुझे जितना चाहिए, पैसा का कमी नहीं होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना चाहिए. ऐसा नहीं, मैंने सुना मेरा दोस्त लोग, Lord, I will help you, I will serve you, I will do ministry, even if 3,000 I will serve. I said, no, I cannot serve that. I'm not serving for money, but I will serve you wholeheartedly, but I need money. गरीबी जीवन नहीं, sufficiency, the blessing has to come. जैसे मैंने प्रार्थना किया जब मुझे मिनिस्ट्री में ज्वाइन हुआ, मालूम है, my salary was more than the manager. मैनेजर को जो मिलता था उससे अधिक मेरा था. किसी मैनेजर का तो मेरा एक सैलरी उनका 2 महीना का होता है. Because I don't believe in that insufficiency. I don't limit God. God can do all things. Amen. Let's say God can do all things. परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं. तब बाद में जब मुझे जो पैकेज दिया गया उसमें काम करते गया, एक बीच में मिला, एक लड़का मतलब कहीं पर जा रहा था, रहने का जगह नहीं, 2 जन आ गया. मेरा कजिन था काम नहीं करके, हम लोग 4 हो गए. बाद में मेरा पैसा जो सैलरी मिल रहा था वो काफ़ी नहीं है. But where I was spending, it was not unnecessary because it is my responsibility to help them. मैं हेजिटेट नहीं किया, तुम लोग जाओ, मैंने भगाया नहीं. मेरा जो प्रेम था पहला दिन देखा वैसे ही उस टाइम में भी मेरा प्रेम था. I love them the same. Though I was not like I was able to like seeing that, मैं देख रहा हूँ कि मेरा पैसा सफिशिएंट नहीं हो रहा है क्योंकि ज़्यादा आदमी हो गया, खाना ज़्यादा हो रहा है, पानी ज़्यादा हो रहा है. ना पानी पीने के लिए भी 2 दिन में एक बार खरीदना पड़ता है. तब जब सफिशिएंट नहीं हो रहा, परमेश्वर को मैंने बोला, परमेश्वर मैंने कहा था मेरे को वो कमी नहीं चाहिए, लेकिन जो आप पैकेज दिया है वो तो ठीक था, लेकिन अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया तो सफिशिएंट नहीं. यू नो, जब इंक्रीमेंट आ गया, आई जस्ट फिनिश 2 months. इंक्रीमेंट जब आया, आदमी लोग बोलते हैं कि तुमको नहीं मिलेगा बिकॉज यू ज्वाइन ऑन जुलाई, सो नेक्स्ट ईयर ऑल्सो यू नॉट गेट. नेक्स्ट ईयर भी आपको नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर वाला मिलेगा. इफ यू कुड हैव ज्वाइन बिफोर अप्रैल देन यू कुड हैव रिसीव इंक्रीमेंट. अरे ये क्या बात हो गया, लेकिन मेरे को दुख नहीं था. ठीक है, रूल तो रूल है, ठीक है, कोई बात नहीं. जब ऑफिस खत्म हुआ, निकल के आया, मन बोलता है कि ATM में घुस के चेक करो. व्हेन आई चेक, आई गॉट इंक्रीमेंट. आप सोच के देखिए, 2231 ऐसे कुछ है अमाउंट. मैं बहुत सारा हो गया, मैं एग्जैक्टली बोल गया, लेकिन 2000 प्लस आई गॉट इंक्रीमेंट. Because it was not sufficient. So God can do all the miracles. और you know, मैं ये कह के नहीं बोल रहा हूँ कि God does the partiality. God doesn't do the partiality. लेकिन किसी का जीवन में ये गरीबी मेंटालिटी होने की वजह से आशीष भी नहीं आता किसी से. जो मेरे से जो सीनियर था, किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिला है, मालूम है. लेकिन I was only 2 months employee. इंक्रीमेंट मिलने का चांसेस ही नहीं है. बट गॉड डज द मिरेकल. आमीन. तो आज आप परमेश्वर को लिमिट कर रहे हो या परमेश्वर को देख रहा है कि उसके लिए असंभव नहीं है. गॉड सेज, डू यू नो, आपको बोलता है परमेश्वर, whoever believes in God, nothing is impossible for them. आमीन. आप सीमा मत रखो, don't limit anything. Think that I can do all things in Christ. आमीन. I can do. आगे बढ़ेंगे. तो अभी यहाँ पे जो परमेश्वर ने कहा कि जैसे पॉल कह रहा है यहाँ पे कि तुमने वो दिया, ये दिया. लास्ट में कहता है कि माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस. माय गॉड शैल सप्लाई
all your need. My God shall supply all your need. मेरा परमेश्वर तुम्हारा हर जरूरतों को पूरा करे। आज बहुत सारे लोग ये वचन को नहीं जानते हैं। किसी को भी बोलते हैं मेरा परमेश्वर तुम्हारा हर जरूरतों को पूरा करेगा। हाँ करेगा, लेकिन आर यू फेथफुल इन टाइटिंग? आर यू फेथफुल इन गिविंग? बिकॉज दिस प्रोमिसेस इज ओनली फॉर गिवर। जो देने वाले हैं उनके लिए ये। अगर आप देने वाला नहीं है तो ये प्रोमिस आपके लिए नहीं है। God cannot supply in all your needs if you are not a good giver, faithful giver. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं? वचन को हम लोग पढ़ के देखना है। Don't just read simply only one word. We have to read the full paragraph. उसका बारे में क्या बोल रहे हैं? ये वचन किसके लिए है? My God shall supply all your needs. जो हमारे बीच में जितने लोग फेथफुली टाइट देते, ऑफरिंग देते, उनके लिए। आमेन। उनके लिए ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा, दिस प्रॉमिस ऑफ गॉड। लूक चैप्टर 6 वर्स 38 में क्या लिखा है? गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। लेट्स से गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। दो, बोलिए दो तो तुम्हें भी दिया जाएंगे। तो वचन क्या बोल रहा है? ये यीशु मसीह ने कहा है। राइट, दिस स्पोकन बाय जीसस क्राइस्ट। दो तो तुम्हें भी दिया जाएंगे, है कि नहीं? दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएंगे? With good measure pressed down and shaken together and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. So when we read this, हम लोग ये इस वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग को लगता है कि for with the same measure that you use, it will be measured back to you. तो आदमी लोग सोचता है कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, कोई पास्टर लोग, God will bless you with proper measure. God never bless you with proper measure. God restore whatever the Satan stolen into proper measure. But God bless you with good measure, pressed down and shaken together. Amen. तो ये मतलब क्या है? Why God says with the same measure that you use, that will measure back to you. क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है give and it will be given to you with good measure, pressed down, shaken together. आप बोस्ता में जब तक नहीं दबाएंगे इतना सामान नहीं खुचेगा, नहीं आप दबा के डालेंगे तो ज़्यादा खुसेगी। राइट, God is trying to just with pressed down, shaken together, हिला के जब आप चावल भरोगे तो चावल ज़्यादा खुसेंगे, है कि नहीं? हिला के। राइट, लेकिन यहाँ पे जो मेजर कह रहा है ये क्या है? The way you give, what kind of measure that you have. आप हिलदे से दे रहे हैं, कितना बड़ा हिलदे से दे रहे हैं? हो सकता है 100 रुपया दे रहे हो लेकिन पूरे मन से ले लो। There is a measure that you give. Amen. कितना बड़ा हिलदे से आप दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर कभी भी देने वालों को दो गुना नहीं देते। Why am I saying? देने वालों को दो गुना नहीं देता है, क्योंकि मलाकी में देखिए, देने वालों को दो गुना नहीं देते, लेकिन परमेश्वर तो कहता है कि स्वर्ग का खिड़की खुल जाएगा और परमेश्वर ऐसा देगा कि आपके पास रखने का जगह नहीं होगा। आप लोग पढ़िए, इस वचन को पढ़िए आप लोग। वर्स 10 में परमेश्वर का वायदा है और वर्स 11 में परमेश्वर का वायदा है। Whoever gives to God, in verse 11 says that He will protect, He will rebuke the devourer, right? For your sake, He will, and so that He will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit. आपका कामों को असफल नहीं होगा, सफलता होगा ही अगर आप ईमानदार से देंगे। परमेश्वर कह रहा है कि मैं जो नाश करने वालों को मैं डांटूंगा, नाश करने देगा ही नहीं। I will not allow to be destroyed. Verse 10 में हम लोग देखेंगे तो I will open the gates of the heaven. परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि परमेश्वर को परीक्षा लेना नहीं, we should not test God. But here in giving God says, test me in this way. परमेश्वर कह रहा है कि चाट के देखो, मुझे टेस्ट करके देखो कि मैं स्वर्ग का खिड़की खोलता है कि नहीं।
राइट 60 lakhs का स्पॉन्सर मिलना, स्वर्ग का खिली खोला कि नहीं खोला? हाँ, राइट। So we need to believe in the word of God. आप ऐसे मत सोचो कि हाँ, how does Persever, I will not have enough room to give. Alright? If God speaks, then that's it. अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो वही है बस. Only thing is be patient. Wait for God's timing. Surely you will see the faithfulness of God. Amen. परमेश्वर का ईमानदार को देखना है. अभी यहाँ पर देखिए, हम लोग कौन सा वचन पढ़ रहे थे? जो ये मेजरमेंट है, the same measure means the way you give, what kind of motive, what kind of heart that you're giving. Don't give stingily, don't give grudgingly. आप कुछ भी ऐसा सोच के मत दीजिए है देने का मत, लेकिन देना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ऐसे करने से परमेश्वर भी है देने का, उसको आशीष करने का मन नहीं, लेकिन आशीष करना पड़ेगा, थोड़ा सा छिड़क देगा। हाँ, थोड़ा सा छिड़क देंगे, ऐसे स्प्रिंकल मारेगा, आशीष परमेश्वर ऐसे थोड़ा बारिश आता है लेकिन गीला नहीं होते ना, ऐसे हो जाएंगे आपका जीवन। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स तो आ रहा है लेकिन आप गीला नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप भी तो कंजूसी करके ऐसे दे रहे हो। सो गॉड इज रेडी टू मेजर विद द सेम मेजरमेंट, बिकॉज सी जो अभी का समय में जो परेशान नहीं, उसका मतलब नहीं कि आप गरीब हो। नो, यू आर नॉट पुअर यू आर नॉट द पुअर, आप गरीब नहीं है। आमेन, आप गरीब नहीं हैं, परमेश्वर में आप धनी हैं। और वो धनी जो है, द रिचेस यू हैव द डिमांड, बिकॉज दैट इज योर पोसेशन, दैट इज योर राइट। आपका जो पोसेशन है, आपका जो संपत्ति, आपको डिमांड करना है। गॉड हैज गिवन यू द रिचेस इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में धनी आपको दे चुका है, राइट। तो अभी जो परिस्थिति, अभी का समय में आपके पास पैसा, कमती पैसा है, उदाहरण में आप 10 रुपया डालोगे ऑफरिंग, God will bless you on 20 rupees. ऐसा होता है क्या? If it is so, then God will never say to the widow, she has too much than any other people. जो विधवा आए थे, 2 सिक्के डाला था खाली, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि उसने सबसे ज़्यादा दिया है। आज आप लोग सबसे ज़्यादा देने वाला बनना चाहते हो, right? When you give, don't think that I'm giving only 10 rupees, so I will be receiving 20 rupees. No. That is wrong teaching. And as a servant of God, whenever you pray for someone, don't ever pray that God will bless you with proper measure. No. Don't pray. Pray for sufficient, abundant, flourishing. Amen. हम लोग कभी भी तपर मेजर का प्रार्थना नहीं करना है। तपर मेजर when shall we pray? जब किसी का हानि होता है, किसी का पैसा चोरी हुआ है, किसी का कुछ हानि हुआ है, तो as per the Hosea God says, I will restore you into proper measure. God will restore. But when when you are giving, God is going to bless you with sufficiency. Amen. Abundant. Let's say abundant. कितने लोग भरपूरी चाहते हैं, abundant चाहते हैं ना? So we need to believe that. ठीक है, आप लोग समझ गया? और यीशु मसीह क्या कहता है? आज हम लोग कहते हैं टाइप क्या देगा, क्या ऑफरिंग देगा, क्या करेंगे। यीशु मसीह के पास भी वही हुआ था, आया, आप क्या कहते हो, ये क्या कहते हो, परमेश्वर को देना चाहिए कि नहीं चाहिए? यीशु मसीह ने क्या कहा? कॉइन दिखाओ, पैसा दिखाओ, पैसा। ये किसका माथा है? सीसर का है। तो जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो तुम्हारा है वो तुम लो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। क्या आप परमेश्वर का खाना खा रहे हैं? परमेश्वर का पैसा चोरी कर रहे हैं? हालांकि में हम लोग जब देखते थे, परमेश्वर को दुख हुआ था, परमेश्वर ने कहा तुम लोग मेरे से चोरी किया, यू हैव रॉब्ड मी, बट आई डिडंट चेंज, मैं अभी तक बदला नहीं है। जैसे जैकब ने मेरे साथ वादा बनाया था, जैसे एग्रीमेंट बनाए थे, that's why you're not still consumed. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको कंज्यूम नहीं करूँ, तुमको नाश नहीं करूँगा। जैकब के साथ ये एग्रीमेंट था, राइट? तो आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर का जो हिस्सा है, परमेश्वर का जो पैसा है, वो खाते रह रहे हैं। हाउ कैन यू बी ब्लेस्ड? परमेश्वर का जो है परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ कहा है, राइट?
that are Caesar's, render to the Caesar the things that are Caesar, and Dukkha the things that are God's, and they murmur at him. Amen. तो आज हम लोग परमेश्वर का जो है वो देना चाहिए नहीं चाहिए? देना चाहिए। परमेश्वर आपका 10वां भाग का जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसको कृति दीजिए। परमेश्वर चाहते हैं कि उसका मन सम्मान दे। Give honor to him, because Jacob says, if you give me to wear the cloth, to give me food, then I like to make me to have a place to take shelter, then I will give the 10th tithe to you and declare that you are my Lord. Jacob कहता है कि मैं 10वां भाग देके कहूंगा कि तू मेरा यहोवा है। आमीन। आप जब 10th tithe देते हैं, ये नहीं कि मेरा पैसा ले लो मैं दे रहे थे, नहीं, वो परमेश्वर का है। खाली आपको कहना है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने दिया है, आप मेरा यहोवा है, आप मेरा चरवाहा है, you are my provider. That is how you can give thanks to him. That is what you can respect him, who is the giver, who is the shepherd. जो आपका चरवाहा है उसका आप मान सम्मान कर सकते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? And the second reason of giving 10th tithe and offering is, when you give the offering and 10th tithe, then only God can bless you. God wants to bless you. परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे से चोरी किया, you robbed me. God says you robbed me means you don't give me chance to bless you. You remove the chances to bless you. आज हम लोग को समझना है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। The reason of the poverty, आप लोग समझ पाया, देने का, देने से ही आपका जन्म में उन्नति आएगा। Amen. The prosperity will come in your life when you give. And after that, see, the reason of poverty is lack of forgiving, unforgiveness. जब आप क्षमा नहीं करते हो तो आपका देने भी फायदा नहीं है। So many people are coming to church, they are tithing faithfully, उन लोग 10वां भाग दे रहे, ऑफरिंग दे रहे, लेकिन उन लोग क्षमा का जीवन नहीं जी रहे। इसलिए उनका जो दिया गया जो पैसा है उसका आशीष देख नहीं पा रहे। They cannot see the result. Why? Because they are living an unforgiven life. हम लोग सीखते हैं, वचन लिखा है, ओ हम 10th tithe देना है, दे रहा है, लेकिन आपका फल देख नहीं रहा, क्योंकि यू आर लिविंग अनफॉरगिवन लाइफ। आप फॉरगिवनेस लाइफ नहीं जी रहे, क्षमा करने का जीवन नहीं जी रहे। वचन क्या कहता है? What does the Bible say? Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or your sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Why? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप किसी का क्षमा नहीं करें। क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है तो आपको आपका विरोध करने वालों को भी क्षमा करना पड़ेगा। And if you don't do that, God cannot bless you. Amen. Don't live a bitter life. Don't live an unforgiven life. ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? हमारे बीच में कितने लोग हैं अनफॉरगिवन जीवन जी रहे, उसको मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। कितने लोग जी रहे? अगर आप है तो आप भी परमेश्वर से कहो मन से कि परमेश्वर मैं उस व्यक्ति को मैंने क्षमा किया है, उस व्यक्ति को मैंने क्षमा किया, मेरा पापा को मैंने क्षमा किया, मेरा मामी को मैंने क्षमा किया, मेरा भाई बहन को मैंने क्षमा किया, मेरा दोस्त को मैंने क्षमा किया। क्षमा करो, फॉरगिव। क्योंकि आप क्षमा नहीं करेंगे तो वही कारण है जो आप गरीबी जीवन जी रहे। द रीजन ऑफ योर पॉवर्टी, in spite of you are faithfully tithing, giving your tithe and offering, but still you live in poverty, is because of you are not living a life of forgiveness. Amen. तो आज हम लोग परमेश्वर का संगति में आएंगे। जब आप कुछ भी ऑफरिंग टाइट देंगे, पहले आप दूसरे को क्षमा करना सीखना है। आमेन। आप लोग समझ पा रहे हैं? और दूसरा एक और है, ये मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ फॉरगिविंग कॉज सिकनेस। जब आप
क्षमा का जीवन नहीं जिएंगे, बीमार लाते हैं, शरीर में बीमार आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोवर्ब्स में क्या लिखा है? A cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit tries up the bones. Crushed spirit tries up the bone. हम लोग का जो हृदय है, हम लोग का आत्मा कब क्रश होता है? जब आपका दिल में दुख लगेगा। दुख कब होता है? जब आप क्षमा नहीं कर पाएंगे, राइट? आपको जब दुख देगा तो आप रात भर सो नहीं पाएंगे, लेकिन दुख देने वाला बिंदास लोकर सुअर का तरह ना, लाइक लोकर पिक सोते रहेगा। हाँ, नहीं तो आसाम ट्रैक्टर लाइक आसाम ट्रैक्टर दे विल स्लीप, साउंड स्लीप। लेकिन आपको तो दुख दिया तो आप तो पूरा रोल कर रहा है, रात भर सोया नहीं। देखा टाइम 3 बज गया, अरे 3 बज गया, सोना है। देखा 4 बज गया, अरे सोना है 5, अरे क्या सोएगा, उठ के चाय पीते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जब हृदय में दुख होता है, किसी को नींद नहीं आता है। जब हृदय में दुख होता है, शांति नहीं होता, मेंटली डिस्टर्ब। समझ पा रहे हैं ना? तो आपको दूसरे को क्षमा करना उनका लाभ के लिए, लेकिन आपका लाभ के लिए क्षमा करना, ताकि आप शांति जीवन जिए, खुशी जीवन जिए। आमीन। क्योंकि आपका हृदय में जब दुख रहेगा तो वो आपका हड्डी को सुखाता है। योर बोन ट्राइज अप। आप और हड्डी जब सूखते तो क्या होता है? बीमार लाता है। बिकॉज व्हेन योर मेरो बोन ट्राइज अप, दैट इज द साइन ऑफ अनहेल्थीनेस, दैट कॉज द सिकनेस, राइट? बट व्हेन यू स्टे हैप्पी, दैट इज अ गुड मेडिसिन। आपका हृदय खुश रखेगा तो वो आपका शरीर के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। आमीन। तो हम लोग को क्षमा का जीवन जीना चाहिए कि नहीं चाहिए? We should live a forgiveness life. आमीन। क्षमा का जीवन जीना है। क्षमा का जीवन जियोगे तो क्या फायदा है? एक, to live a good health, अच्छा तबीयत का जीवन जिएगा, और दूसरा उन्नति का जीवन जिएगा। आमीन। तो अभी यहाँ पे yes, I wanted to explain this one. When you give to the Lord, don't think you are giving only 10 rupees. You learn to give like a widow, wholeheartedly, cheerfully, because God loves the cheerful giver. Amen. God loves the cheerful giver. तो लास्ट करके ये पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग बीज बोना चाहते कि नहीं चाहते? Do you want to show the seed today? These are the points that you can note it down. Taking out the tithe. जब महीना में आपका सैलरी खुशेगा, इनकम आएंगे। जो बिजनेस करते हैं, आप हर दिन इनकम आते हैं, या सप्ताह में आप हर दिन निकालोगे या सप्ताह में निकालोगे, वो आपका ऊपर। और जो काम करते हैं, महीना में जब सैलरी आएगा, सबसे पहले आपको टाइथ निकालना है। डोंट यूज इट एज सून एज द सैलरी इंटर, आप यूज मत करो बिफोर यू गिव टाइथ टू द लॉर्ड, इफ यू वांट टू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ठीक है। फिर इसके बाद संडे के लिए ऑफरिंग निकाले। 4 संडे हैं तो 4 संडे में एक संडे में आप कितना डालोगे, निकाल के रखो, ताकि यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम टू कीप ऑफरिंग इन ऑन संडे। एंड उसके बाद if it is required, if God speaks to your heart, you take out some amount for the poor people. गरीब लोगों के लिए भी थोड़ा पैसा निकाल के दो, क्योंकि आप बीज जितना बोएंगे उतना ही आपका जीवन में आशीष देखेंगे। ठीक है। एंड फोर्थली, लीव बिफोर यू गिव, फॉरगिविंग बिफोर यू गिव। क्षमा करना है। ठीक है। आदमी को क्षमा करना है, तभी आपका देने का आशीष होगा। ठीक है। बीज बोते रहेंगे लेकिन आप क्षमा नहीं करोगे तो उसका फल नहीं देखेंगे। आमीन। तो इस वचन की तरह हम सबको परमेश्वर आशीष करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे अभी। लेट्स प्रे।